इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यस, अपना फिफ्थ स्टैंडर्ड का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग। देखो ये जो फ्रैक्शंस है ना वो इक्वल है, 1/3। हाँ, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। हाँ, हो गया ना। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है, 1 2 3 4 यह सीक्वेंस है, इसका मतलब यहाँ कितने आएंगे, फिफ्थ। ओके, 5, 5 1 जा 5, अब 5 3 जा 15, अंडरस्टूड। इसके बाद में 6 आएंगे, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। इसके बाद में 7 आएंगे, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। हाँ, अब यहाँ 3 है और यहाँ 24 है, वैसे तो 7 के बाद में यहाँ 8 आने वाले हैं, बट वी विल फाइंड बाय सम डिफरेंट वे। 1/3 है और यहाँ क्या है 24, 1/3 है, हियर इज द ब्रैकेट और यहाँ है 24। ओके, 1/3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 24 है ना, ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 24। और ये कौन है, 3 है, 1/3 divided is equal to bracket upon 24. अब how will we, let's see, ये यहाँ डिवीजन में है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 24 ब्रैकेट, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इसका मतलब यहाँ क्या आएंगे 8, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24। अब 8 के बाद में क्या आने वाले हैं 9, you know very well, but we will find by different way. How, let's see, 1/3 is equal to 36 bracket upon 36. We have to find out exact figure here. Here is in division, here in multiplication. We have to find out the value in bracket. 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, this means 12, 3 1 जा 3, 3 12 जा 3 1 जा 3, 3 12 जा 36 और 12 3 जा 36, here will be 12. You don't have to make mistake. We suppose that here will be 9, but now, huh? Understood na? We suppose the sequence is 1 to 7, then 8, here will be 9, but no. This is the math. Huh? All are equivalent fractions. Understood na? Once again, we will find out the value of that bracket. How? 1/3 is equal to bracket upon 36. Huh? What I did? 1/3. Here is 36 is in division. Here will be multiplication. Now there is a bracket only. Now 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6 means 12. 12 1 जा 12. Here is 12. It is very easy. It is very simple. Now 2/5. 2 2 जा 4 means 5 2 जा 10. Okay. 2 2 जा 4. 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4 and 5 2 जा 10. Now 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 5 4 जा 20. Now here is a 50. Again we have to take that formula. Means 2/5 is equal to bracket upon 50. Now 2/5, 50 is in division. Here will be multiplication. We are going to find out value in bracket. 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 2 जा 20. It means here will be 20.
Now 2 upon 5 is equal to bracket upon 100. Again 2 upon 5, 100 is in division. Here will be multiplication. There is a bracket now. Very simple. 5 ones are 5. 5 twos are 10 and 0 means 20. And 20 twos are 40. Here will be 40. Understood? It is very easy. It is very simple. Like करे, सब्सक्राइब करे. वीडियो चल रहा है, लेसन कंप्लीट करना है. We are continue. We are continue. Equivalent fraction. See, here are some images on this whiteboard. We have to compare. We have to observe. We have to watch it carefully. And we are going to make a fractions. This is very easy, very simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All are total boxes are 12. Total boxes are 12. Count 4, 8, 12. Total are 12. And shaded 1, 2, 3, 4. 4 out of 12. 4 boxes are shaded out of 12. Here 1, 2, 3. Total are 12. 3 boxes out of 12 are shaded. Here 1 and 2. 2 boxes are shaded out of 12. 4 upon 12, 3 upon 12 and 2 upon 12. We have made a fractions. 2 out of 12, 3 out of 12, 4 out of 12, 3 out of 12 and 2 out of 12. Now we will make a equivalent fractions. How? It can be divided. 4 upon 12 can be divided. You know table very well. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12. 4 ones are 4, 4 threes are 12. These are equivalent fractions. Next one. You can make, you know the table of 3 very well. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9 means 1 upon 3. These are equivalent fractions. 2 upon 12, 2 upon 12, 2 out of 12, 2 ones are 2, 2 six are 12, 1 upon 6. In this way, we made a fractions from the images and we made equivalent fractions by dividing, by doing the method of division. Understood? It is very easy. It is very simple. Like करें, subscribe करें. हमें मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है. Students, compare the following fractions using this sign. हमें क्या करना है? इन fractions को compare करना है. Some pair has given here. Okay. The feature of these fractions are the pair which has been given. The feature of these fractions, pair of fractions, is denominator is equal. See, denominator is equal. छेद समान है. Numerator is different, but denominator is same, equal. 4, 8, 8, 5, 5, 10, 10, 7, 7. Okay. In such a condition, we can compare easily. Denominator is equal. In such a condition, numerator अगर बड़ा हो तो that fraction is greater than other one. Denominator is equal. In such a condition, 2 upon 6 because 2 is greater than 1. दो एक से क्या है बड़े हैं और डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है. ऐसी कंडीशन में साइन यहां आएगा. 2 upon 6 is greater than 1 upon 6. How? We can check. See, 1 into 6, 6 and 2 into
6 is equal to 12. 12 is greater than 6 means this is 6. Or simple, d numerator is equal. In such a condition, जो न्यूमरेटर बड़ा रहेगा वह फ्रैक्शन बड़ा रहेगा. Simply. Here d numerator is equal. This means 3 upon 4 is equal greater than 1 upon 4. How? 1 into 4 means 4. 3 into 4 means 12. 12 is greater than 4 means 3 upon 4 is greater than 1 upon 4. Next, here again d numerator is equal, same. अब 7 upon 8 and 3 upon 8, 7 is greater than 3 means 7 upon 8 is bigger. See, 7 into 8 56 and 3 into 8 24. 56 is greater than 24. Understood? This is very easy. This is very simple. Here 3 upon 5, 4 upon 5, 4 upon 5 is greater. 5 upon 10, 6 upon 10, 6 upon 10 is greater. 5 upon 7, 2 upon 7, 5 upon 7 is greater than 2 upon 7. 2 upon 6, 1 upon 6, 2 upon 6. चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. 2 into 6, 12. And 1 into 6, 6. 12 is bigger than 6 means 2 upon 6 is greater than 1 upon 6. It is very easy. It is very simple. मैं solve करके दे देता हूँ भाई. 3 into 5, 15. And 4 into 5, 20. अब क्या हो गया? 15 और 20 में 20 is bigger means 4 upon 5 is bigger. Here 5 tens are 50. 5 tens are 50. And 6 tens are 60. कौन बड़े है? 6 tens are 60 बड़े है means the next one. Understood? This is very easy. This is very simple. Don't go anywhere. We are continuing. हाँ? Like करें, subscribe करें. Students, again we are going to compare and are going to use these signs. Okay, these symbols. Now something is different. In earlier stage, the numerator were equal. Now numerators are equal. Okay. Huh? See? No problem. It is very easy. It is very simple. Huh? 3 upon 8 and 3 upon 7. अब देखो हमको 3 का 8 पार्ट करना है और या 7 करना है. अब 3 के 8 पार्ट होंगे तो छोटे छोटे होंगे और 7 होंगे तो थोड़े बड़े होंगे क्योंकि 7 छोटे हैं और 8 बड़े हैं. तो 8 is bigger than 7 ना. In such a condition, when numerators are equal, in such a condition, we have to observe denominator. हाँ? अगर अंश इक्वल है तो हमें छेद को कंपेयर करना है. अब देखो यहाँ 3 upon 8 है यानी 3 के हमें 8 पार्ट करना है. यहाँ 3 upon 7 है 3 के हमें 7 पार्ट करना है यानी कम पार्ट करना है. इसका मतलब वो जो पार्ट रहेगा वो जो हिस्सा रहेगा वो बड़ा रहेगा. So in such a condition, sign will be here. Sign C. Sign will be here. Okay. How? Let's see. 3 sevens are 3 into 7 is equal to 21, and 3 eights are 24. Huh? This means 3 upon 7 is bigger than 3 upon 8. Again, numerators are equal. अब यहाँ हमें 10 पार्ट करना है तो ये पार्ट छोटे छोटे होंगे और यहाँ हमें 9 पार्ट करना है. 4 के 9 पार्ट्स करना है, 4 के 10 पार्ट्स करना है. तो जो 9 करेंगे तो थोड़ा बड़ा साइज मिलेगा और 10 करेंगे तो 9 से यानी 4 अपॉन 9 से छोटे मिलेंगे. करेक्ट ना? या फिर हमारा चेक करने का एक हमारे पास फॉर्मूला भी है. 4 into 10 40. ओके. एंड 4 9s are
36. 40 is greater than 36. This means 4 upon 9 is greater than 4 upon 10. Understood? न्यूमरेटर अगर इक्वल रहे तो डी न्यूमरेटर छोटा हो तो वह फ्रैक्शन बड़ा. ठीक है. इन सच ए कंडीशन डी न्यूमरेटर क्या चाहिए, हमें छोटा चाहिए. तो जिस फ्रैक्शन का डी न्यूमरेटर छोटा रहेगा वह क्या रहेगा, कंपैरिजन में बड़ा रहेगा. ओके. हियर अगेन two numerators are equal. Denominators 5 is smaller than 7. It means sign will be here. Here 5 7 upon 7 या 6 है. 5 upon 7 5 upon 6. It means चेक करना है कर लो. 5 into 6 30. मैं मल्टीप्लीकेशन करते समय जो ये फ्रैक्शन ऐसे काउंट यहां से न्यूमरेटर लिया तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं. ध्यान रहे मेरा 5 7. हर किसी का टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट होता है. 35 is big. It means okay. Here 2 5s are 10 and 2 7s are 14. 14 is bigger than 10. This means 2 upon 5 is bigger than 2 upon 7. Understood? This is very easy. This is very simple. We have compared. Okay. Here are some images I have made for you. This is a complete whole. इन ज्योमेट्री में हमने इसका मेजरमेंट भी देखा है. 360 हाफ 180 180 180 360. दिस इज कंप्लीट होल. दिस इज हाफ एंड दिस इज 1 2 3 4. वन पार्ट के हमने 4 कर दिया तो 1/4. ये 1 एंड 1 अपॉन 2 मीन्स हाफ. दिस इज होल कंप्लीट. 2 पार्ट हाफ 1 अपॉन 2. 1 के हमने क्या कर दिए 4 कर दिए तो 1 अपॉन 4 मीन्स 1/4. ओके. अगर 3 किए तो 1/3. 3 होते हैं ना. जैसे पूरा 360 है, ये 360 है तो हम ये पॉइंट लिए 120 120 के बनाए तो 120 120 120 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं. तो ये 3 बनाए हमने, ये 1/3 हो गए. अंडरस्टूड? हमें ये समझनी चाहिए ये भी फ्रैक्शन ही है. होल हाफ 1/4 1/3. इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है. जब पढ़ेंगी मैं बताऊंगा. लेट्स सी. लेट्स अहेड. वेट, डोंट गो. स्टूडेंट्स, something different problem. Yes, but it is very easy. It is very simple. How many 1 upon 12 make? ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, इमेज देख रही है ना, इसमें 12 बॉक्सेस है. 1 upon 12 कितने हैं? एक के हमने 12 हिस्से किए हैं. ओके. अब हाउ मेनी 1 अपॉन 12 म्हणजे इस हिस्से के 1 अपॉन 4 कितने होंगे? यानी हमें 1 अपॉन 4 मीन 1/4 शेड करना है, कलर करना है तो हमें कितने बॉक्सेस कलर करने पड़ेंगे? सिंपली सिंपल लैंग्वेज में हाउ मेनी 1 अपॉन 12 मेक. ये जो 1 अपॉन 12 है, 1 अपॉन ये जो 12 है, इसके 1/4 कलर करना है, 1/4 पार्ट को शेड करना है तो हमें कितने बॉक्सेस को शेड करना पड़ेगा? कैसे ढूंढेंगे? देखो, हमें वो नंबर ढूंढना है. 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है. लेट दैट नंबर बी एक्स. लेट दैट नंबर बी एक्स. सपोज ये समझो कि हमें एक्स ब्रैकेट्स एक्स बॉक्सेस कलर करना है. एक्स बॉक्सेस कलर करना है तो x of 1 upon 12 is 1 upon 4. हमें 1 upon 4 इसे कलर करना है तो वो कितने बॉक्सेस है पता करना है. तो कैसे करेंगे? लेट दैट नंबर बी एक्स. सपोज वो नंबर क्या है? x है और x of 1 upon 12 is क्या है? 1 upon 4. It means 1 into 1 upon 12 is equal to 1 upon 4. ओके. अब कैसे होगा? x is equal to 1 upon 4. ये यहाँ पे क्या है? यह फ्रैक्शन उधर क्या हो जाएगा? 12 upon 1 हो जाएगा.
x इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 4 3 जा, इट मीन्स x इज इक्वल टू 3 मीन्स हमें 3 बॉक्सेस को कलर करना है। फ्रेंड्स, हाउ मेनी 1/12 मेक, यानी ये इमेज में 12 बॉक्सेस है, करेक्ट। 1/12 इस एक हिस्से के 12 हिस्से बनाए हैं, 12 बॉक्सेस बने हैं। तो हाउ मेनी 1/12 मेक्स, इसके 1/4 हिस्से कितने होंगे, यानी वो हमें बॉक्सेस का फिगर निकालना है कि कितने बॉक्सेस 1/4 कहलाएंगे। 1/12 है टोटल, ठीक है, टोटल 12 बॉक्सेस है। इस 12 बॉक्सेस के 1/4 कितने होंगे, तो हमने क्या किया, लेट दैट नंबर बी एक्स, हमने उन बॉक्सेस को x समझा, x गृहीत धरा, ठीक है। अब x ऑफ 1/12 इज क्या आएगा 1/4, यानी ax किसका है, हमें वो जो बॉक्सेस की संख्या ढूंढनी है वह इसमें से ढूंढनी है, यानी ये 12 है तो 1/4 कितने होंगे, तो 1/4 कितने, 1/4 ऑफ 12, हाँ। सो दैट नंबर, जो नंबर हमें ढूंढना है वो कौन सा, हमने सपोज किया है x, तो x ऑफ 1/12 इज 1/4, ओके। अब इसको हमने मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म दे दिया है, x इज इक्वल x मल्टीप्लाइड बाय 1/12 is equal to 1/4, okay. Now this is in multiplication, there will be in a division, okay। तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, यानी ये जहां डी न्यूमरेटर में था वो यहाँ पे कहां पर आ गया, न्यूमरेटर में, है? मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज। नाउ x इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12/1, 1 हैज नो वैल्यू, 4 1 जा 4 हो जाता है, ठीक है। बट 12 can be divided by 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, so answer is 3, x is equal to 3। it means हमें 3 पार्ट, कोई भी 3 पार्ट ले लीजिए, वो क्या है 1/4 है, ठीक है। 3 बॉक्सेस में 3 मीन्स 3 बॉक्सेस मीन्स ये जो 3 है 3 बॉक्सेस है, ये इस 12 बॉक्सेस का 1/4 है। नाउ हाउ मेनी 1/12 मेक 1/3, अब ये क्या है 1/12 है, यानी इसके कितने हिस्से है, इसमें 12 बॉक्सेस है, एक इमेज में ये कितने बॉक्सेस है, 12 बॉक्सेस है। इन 12 बॉक्सेस का 1/3 कितना होगा, इसको एकदम आसान शब्दों में अगर बताते हैं तो ये जो 12 बॉक्सेस है, इन 12 बॉक्सेस का 1/3 कितना होगा, हाउ मेनी 1/12 मेक 1/3, तो क्या, लेट दैट नंबर बी एक्स, लेट दैट नंबर बी, लेट दैट नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को, जितने नंबर को हमें शेड करना है, हमने उसको क्या गृहीत धरा है, x गृहीत धरा है। अब x ऑफ किसका 1/12 का कितना होना है 1/3 होना है, यानी x किसका 1/12 का x कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा 1/3, x ऑफ 1/12 इज 1/3। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में x इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1/3, ये उधर चले जाएंगे, 1/3 इंटू 12/1 मीन्स 3 1 जा 3 और 12 1 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, आंसर इज 4। हमें 4 बॉक्सेस को शेड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी सिंपल। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करें, सब्सक्राइब